वेरी गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। अब तो आ रही है आवाज, बिल्कुल बढ़िया, शानदार। तो अब क्या था डिस्कशन, क्या था लास्ट क्लास में, क्या दिया था मैंने? रियल गैसेस से कुछ, वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट था क्या वो कंफर्म कर लेते हैं रियल गैस का। बची हुई पूरी शीट दे दी थी ना। हम्म। रिमेनिंग O2। तो चलिए लास्ट के 15 मिनट्स डिस्कस करेंगे। जेई, जो भी बात रियल गैसेस से रिलेटेड जो भी डिस्कशन है। आई एम, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, राइट। और एनसीईआरटी भी रीड करने के लिए कहा था मैंने। वॉमिक आप जो लिख पा रहे हो यार, पढ़ नहीं पा रहा हूं। कार्तिकेय, नहीं नहीं, ज्यादा डिले नहीं है चैट। तो 5-7 सेकंड का गैप होता है, फिर कोई ज्यादा डिले नहीं है। मैक्सिमम मुझे लगता है 10 सेकंड्स का डिफरेंस आता है। 10 सेकंड्स का, राइट, ओके। बिल्कुल वॉमिक पूछ लेना। तो एनसीईआरटी रीड करने के लिए भी कहा था मैंने आप लोगों को, रीड करिए आप लोगों ने एनसीईआरटी में से क्या, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आपको रीड करने के लिए मैंने कहा था। ठीक है, चलो जी चलो। अब वापस से पहले तो रदरफोर्ड मॉडल पर आ जाते हैं, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट के 15 मिनट्स हम रियल गैस डिस्कस करेंगे। सर नेक्स्ट टेस्ट में क्या आएगा पता चल जाएगा बेटा, जो पढ़ते जा रहे हैं वो आता जाता है। देखो सीधी सी बात है, टेस्ट के सिलेबस में ज्यादा कुछ कंफ्यूज मत हुआ करो। जो पढ़ रहे हैं वहां तक, यानी 1-2 लेक्चर पुराना सारा टेस्ट में आता है, ये ध्यान रखना। और एक दो मेरे पास छोटे छोटे वीडियोस हैं, चलो वो थोड़ा सा दिखा देता हूं मैं आपको। मुझे लगता है थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। Alpha scattering experiment. The credit for the discovery of the nucleus of an atom goes to a British physicist, Lord Ernest Rutherford. Shown here is the diagrammatic view of the famous gold foil experiment conducted by Lord Rutherford. The radioactive source, rich in alpha particles, was kept in a thick lead block with a narrow opening. The alpha particles were confined to a narrow beam by passing them through a lead sheet with a slit. An extremely thin foil of gold was bombarded with these fast-moving alpha particles. The scattered alpha particles were detected using a rotatable detector, which has a microscope and is screen-coated with zinc sulfide. The whole experimental setup was placed in an evacuated chamber to prevent scattering by the air molecules. These striking particles caused scintillations on the screen. Very few alpha particles experienced a deflection. It was concluded that the volume occupied by the nucleus is very small. Since alpha particles, which are comparatively denser, were deflected by the nucleus,
It shows that almost the complete mass of the atom must be within the nucleus. देखो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, छोटा सा पार्ट है, थोड़ा सा इसका ना एक बार वापस सुनवा देता हूँ। Rutherford's alpha scattering experiment. The credit for the discovery of the nucleus of an atom goes to a British physicist, Lord Ernest Rutherford. Shown here is the diagrammatic view of the famous gold foil experiment conducted by Lord Rutherford. The radioactive source, rich in alpha particles, was kept in a thick lead block with a narrow opening. The alpha particles were confined to a narrow beam by passing them through a lead sheet with a slit. An extremely thin foil of gold was bombarded with these fast-moving alpha particles. The scattered alpha particles were detected using a rotatable detector, which has a microscope and a screen coated with zinc sulfide. The whole experimental setup was placed in an evacuated chamber to prevent scattering by the air molecules. These striking particles caused scintillations on the screen. Based on the observations, Lord Rutherford deduced these conclusions. As most of the alpha particles pass through the gold foil without any deflection, most of the space within the atoms is empty. As some of the alpha particles were deflected by large angles, they must have approached some positively charged region responsible for the deflection. This positively charged region is called the nucleus. As very few alpha particles experienced the deflection, it was concluded that the volume occupied by the nucleus is very small. Since alpha particles, which are comparatively denser, were deflected by the nucleus, it shows that almost the complete mass of the atom must be within the nucleus. हाँ जी, तो ये तो जो लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था वही है, कुछ खास ऐसा डिफरेंट नहीं। तो फाइनली लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस क्या थे, उससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, और फाइनली रदरफोर्ड ने अपना न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल दिया जिसमें यह कहा था कि एक एटम का जो मास होता है, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, वो एक छोटे से पोर्शन में कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक दूसरे को बांधे हुए रखता है, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था, उसके रिजल्ट्स, बट इसके ड्रॉबैक्स क्या थे वो भी आएंगे। बट उससे पहले, रदरफोर्ड्स के ड्रॉबैक से पहले हमें बहुत कुछ समझना होगा, बहुत सारी चीजें और समझनी होगी, तब जाके हम कहीं रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स को थोड़ा बहुत समझ पाएंगे। उससे पहले कुछ न्यूमेरिकल्स और बनते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। तो रदरफोर्ड ने एक न्यूक्लियस की रेडियस निकालने का एक फॉर्मूला दिया, उसका कोई डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखिए। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की मैं बात कर रहा हूं, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इक्वल्स टू आर नॉट ए की पावर 1/3। ये किसकी रेडियस है? न्यूक्लियस की रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। आर नॉट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 1.33 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 को पिकोमीटर भी कहते हैं। यस, यमन जिंक, ZnS मतलब जिंक सल्फाइड। और ये जो ए आप यहां देख रहे हो, दिस ए इज एटॉमिक मास या मास नंबर, जो कि सिंपली किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन।
तो यहां से आप ये कह सकते हो कि जो न्यूक्लियस की रेडियस होती है वो पिकोमीटर की रेंज में होती है, बहुत छोटी है ये रेंज, यानी बहुत कम रेडियस होती है। ये आप कह सकते हो, लास्ट क्लास में एक एग्जांपल भी मैंने दिया था, एनसीईआरटी में भी आपने पढ़ा होगा कि जो साइज होती है न्यूक्लियस की वो एटम के रेस्पेक्ट में बहुत कम होती है, बहुत कम। नाउ ये तो एक फॉर्मूला जो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखना है। अब यहां पर एक दो फिजिक्स के फॉर्मूले में और लिख रहा हूं, फिजिक्स के फॉर्मूले और लिख रहा हूं, वो भी आपको याद रखने हैं। दो चार्ज पार्टिकल जो होते हैं, चार्ज पार्टिकल, अगर लेट से ये दो चार्ज पार्टिकल है, इस पर चार्ज है Q1, इस पर चार्ज है Q2, तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है, इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो K Q1 Q2 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, जहां Q1 Q2 ये क्या है, चार्ज ऑन पार्टिकल, R क्या है उनके बीच की डिस्टेंस, और ये K क्या है, K क्या है, और मैंने थोड़ा सा शायद यहां गलत बोल दिया वर्ड, 10⁻⁻15 को आई थिंक मैंने पीको बोल दिया, वो पीको नहीं फर्मी मीटर है। 10⁻12 पीको होता है, 10⁻15 पीको नहीं फर्मी मीटर होता है, ठीक है, क्लियर। वापस इस पर आ रहा हूं, और के यहां पर एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 यूनिट्स, ऐसा यूनिट में मान लो सब, के इज कांस्टेंट। वैसे ये ज्यादा डिटेल में आप फिजिक्स में पढ़ोगे, बट कहीं कहीं ऐसा भी दिख सकता है 4πε0। अब इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दिट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी तरह से जब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात आती तो उसका भी फॉर्मूला कुछ इसी तरह से होता है, Gmm/r²। दो मास, यानी एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2, तो उन यानी पार्टिकल्स के बीच में भी फोर्स लगता है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, Gmm/r², राइट, Gmm/r²। क्या कमेंट आ रहे हैं बहुत ज्यादा स्पीड से? हाँ, परमिटिविटी कह सकते हो, परमिटिविटी, ठीक है। आर क्या है बेटा, दिख रहा है यहां पर बहुत क्लियरली, ये आर नहीं दिख रहा शिवम, इसको छोड़ो अभी तुम, ये सब कांस्टेंट्स हैं, तो आपको तो बस इस के की वैल्यू से मतलब है। आर ये नहीं दिख रहा, आर क्या है, ओके, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और सिमिलर चार्ज पार्टिकल है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सिमिलरली चार्ज पार्टिकल है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर अपोजिट चार्ज पार्टिकल है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दिस इज नॉन एज कूलॉम्स लॉ। राइट, नाउ अब हम आगे बढ़ रहे हैं यहां पर। हाँ, ग्रेविटेशन जैसा ही फॉर्मूला है। देन इस पर रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएंगे उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ, अच्छा उस क्लोजेस्ट अप्रोच, एक फॉर्मूला और लिखेंगे यहां पर, एक फॉर्मूला यहां पर मैं और लिखूंगा। अगर दो चार्ज पार्टिकल जिनके बीच की डिस्टेंस, जैसे अभी पहले लिखा था वही वापस से लिखना है, Q1 Q2, अगर इनके बीच की डिस्टेंस r है तो एक टर्म और हम यहां डिफाइन करें, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, अगर कहीं पर भी कुछ फोर्स लग रहा है तो उसके कारण एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी।
ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहां अभी हम जो बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। जनरली इस पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से भी लिख देते हैं, कैपिटल यू से भी लिखा जाता है। और यानी दो फॉर्मूले हो गए। फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान रखना ये केवल मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं। पोटेंशियल एनर्जी प्लस में भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस में भी हो सकती है। फॉर सिमिलर चार्ज पार्टिकल्स, अगर दोनों चार्ज पार्टिकल सेम चार्ज वाले हैं, फॉर सिमिलर चार्ज पार्टिकल्स पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव। ऑब्वियसली बात है, इसका मतलब अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स हुए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव। सिमिलरली चार्ज पार्टिकल है तो रिपल्शन का फोर्स होगा, अपोजिटली चार्ज पार्टिकल है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स, इवन यहां पर मैं कभी कभी, अभी तो नहीं बट आगे चल के हमें एक फॉर्मूले की और जरूरत पड़ेगी। ये जो फोर्स होता है, फोर्स, इसको पोटेंशियल एनर्जी से भी रिलेट किया जा सकता है, विच इज माइनस डी यू अपॉन डी आर। माइनस प्लस साइन केवल अभी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता हमारे लिए, वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। मैग्नीट्यूड पर फोकस करो, क्योंकि जो माइनस और प्लस है ना, ये फिजिक्स में ज्यादा वेक्टर्स पर जब सोचते हो तब जरूरत पड़ती है। तो अभी ज्यादा फोकस किस पर करना, मैग्नीट्यूड पर। लेकिन हाँ, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी को रिलेट किया जा सकता है। माइनस डी यू अपॉन डी आर करोगे तो यहां से फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी को आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर हम फोर्स निकाल सकते हैं। अभी यूज नहीं करेंगे बट आगे कहीं हम इन फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो तीन फॉर्मूले मैं अभी यहां पर आपको बता रहा हूं, 1, 2 और 3। ये ज्यादा डिटेल में आप फिजिक्स में पढ़ोगे, ध्यान रखना। और इस चीज को भी ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी प्लस होगी या माइनस होगी, ठीक है, प्लस होगी या माइनस होगी, वो सारी चीजें आगे आएगी। अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, अब मैं उसकी बात करूंगा। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जैसे आप एक पत्थर को फेंकते हो ना, आप एक पत्थर को एक पर्टिकुलर स्पीड से ऊपर फेंकते हो, एक काइनेटिक एनर्जी उसको देते हो, लेकिन जैसे जैसे पत्थर ऊपर जाता है उसकी स्पीड क्या होती, कम होती। क्यों कम होती, क्योंकि ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही है। तो क्वेश्चन ये आता है कि जो आपने पत्थर को काइनेटिक एनर्जी दी वो कहां गई, क्योंकि पत्थर ऊपर जब फेंका तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, धीरे धीरे कम हो रही है। तो हम ये कहते हैं कि जो पत्थर आपने ऊपर फेंका है उसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है। वो किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में। जब उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी तब मतलब वो पूरी किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। तब वो मैक्सिमम हाइट पर होगा। वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh। ये mgh कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक अलग है, फोर्स अलग, तो पोटेंशियल एनर्जी भी अलग। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला mgh आपको पता है। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक कम, पोटेंशियल बढ़ेगी। एक टाइम आएगा काइनेटिक जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। उसके बाद वो पत्थर वापस नीचे गिरने लगेगा, और जब नीचे गिरेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, फिर से काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी। पता है ये सबको, राइट। जब भी अगर अट्रैक्शन है, दो पार्टिकल्स, सुनना मेरी बात, दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन है, आप उन्हें दूर दूर लेके जा रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अगर अट्रैक्शन है, दूर दूर लेके जा रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अर्थ और पत्थर के बीच में अट्रैक्शन है, वो दूर दूर जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अर्थ और पत्थर के बीच में अट्रैक्शन है, दूर दूर लेके जा रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। नाउ यहां पर भी जो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल वाला एक्सपेरिमेंट था, उसमें क्या था, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं,
तो इस न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है। कितना पॉजिटिव चार्ज है? तो एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब्स, राइट। तो यहां पर ये यूनिट कूलम्ब्स है, ध्यान रखना। तो यहां पर अगर मान लो ये किसी एलिमेंट का न्यूक्लियस है, उसका उस पर चार्ज कितना होगा? तो चार्ज उस पर कितना होगा? Z मल्टीप्लाइड बाई ई, Z मल्टीप्लाइड बाई ई, जहां पर Z क्या है? उसका एटॉमिक नंबर। Z क्या है? एटॉमिक नंबर। तो ये प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज कितना है? एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब कोई अल्फा पार्टिकल यानी उस पर चार्ज कितना होता है? 2e कह सकते हो आप। इस पर चार्ज कितना है? 2e। ये प्लस, ये भी प्लस। जब आप इस अल्फा पार्टिकल को इसकी ओर थ्रो करते हो, एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी से थ्रो करोगे, इस पे भी प्लस चार्ज, इस पे भी प्लस चार्ज। जैसे जैसे ये पास में आएंगे, रिपल्शन हो रहा है, इसकी स्पीड कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब एक टाइम आएगा, एक टाइम आएगा जब यहां पर मान लो r डिस्टेंस पहुंचने पर, समझ लो ये न्यूक्लियस है जो कि बहुत छोटा है, तो बड़ी साइज दिखाने के लिए, इससे जब r डिस्टेंस पर ये आ गया, तो यहां पर आते आते काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? जीरो। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? जीरो। क्या होगा? ये अल्फा पार्टिकल यूं कह दो यहां से रिटर्न हो जाएगा, यहां से रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि रिपल्शन हो रहा है। यहां तक तो ये आ रहा था, इसकी स्पीड थी, यहां आते आते काइनेटिक एनर्जी जीरो, यहां से रिटर्न हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है आर, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अरे बेटा, चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ही होता है, सो हम ई लिखो, चार्ज वही होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। समझ गए? पी नहीं लिखा जाता उसको। केवल लिखो तुम जो मैं बता रहा हूं। तो यहां पर मान लेते हैं ये जो हीलियम है, हीलियम, इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियली, ध्यान रखना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, आई स्टैंड फॉर इनिशियली। ये काइनेटिक एनर्जी जब पूरी जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो ये पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में। वो डिस्टेंस क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी पूरी पोटेंशियल में जब कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब किसके बराबर? के Q1 Q2 अपॉन आर। काइनेटिक, या चाहो तो नीचे लिख लो यहां पर, या तो इसी फॉर्मूले को लिख, काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम वी स्क्वायर। ये ध्यान रखना, कौन सी स्पीड है? इनिशियल स्पीड, इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, ज्यादा नहीं आएंगे देखो, क्योंकि फिजिक्स ज्यादा इन्वॉल्व है। अगर हमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता है या इनिशियल स्पीड पता है, तो यहां से हम आर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर ये मैं बता दूं, ये Q1 किस पर चार्ज है? Q1 अल्फा पार्टिकल पर चार्ज, यानी 2 इंटू ई। Q2 किस पर चार्ज है? Q2 किस पर चार्ज है? इस न्यूक्लियस पर, जो कि क्या हो जाएगा? Z इंटू ई। गोल्ड का है तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर, सिल्वर है तो सिल्वर का एटॉमिक नंबर। सब डायग्राम में दे रखा बेटा, कौन सी चीज क्या लिखी हुई, सब यहां लिखी हुई है, देखो ढंग से सब दिखेगा, पूछने से कोई मत नहीं। सॉरी, यहां मैंने, या पोटेंशियल एनर्जी में केवल आर आएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में यहां केवल आर होगा। बिल्कुल ठीक है। हाँ, ऐसे जरूर बता दिया करो, ये गड़बड़ गड़बड़ लिख दी। Q1 की वैल्यू, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पर चार्ज, Q2 की वैल्यू, K की वैल्यू, M पता, यानी
v पता है तो r निकाल सकते हो। इस r को हम बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी इतना पास में वो अल्फा पार्टिकल है। जैसे आपने कहा ना पत्थर कितना ऊपर जाएगा, यहां पर आप ये निकाल सकते हो कि वो पार्टिकल कितना पास आ जाएगा। अरे बेटा ई की वैल्यू ये लिखी हुई है यार, क्यों थोड़ा सा भी दिमाग चलाने के लिए रोक रखा है अपने दिमाग को? स्टोर मत करो, जंग लग जाएगी उस पर। हाँ, तो उसको थोड़ा यूज करो। तो ठीक है, कुछ एक दो क्वेश्चन यहां से आप कर सकते हो, एक दो क्वेश्चन यहां से किए जा सकते हैं। कोई कह रहा नहीं सर अनयूज्ड ब्रेन महंगा बिकेगा, ऐसा बिकेगा ही नहीं बेटा, महंगा छोड़ो तुम। हाँ, अक्षत पूछ रहा है एम क्या है बेटा? तुम्हारा बॉडी वेट है अक्षत एम, तुम्हारा मास यहां पुट करेंगे हम। अभी तक ये फॉर्मूला यूज ही नहीं हुआ क्योंकि तुम्हारा मास, एटॉमिक मास, तुम्हारा मास नहीं पता, तो वो पुट करेंगे यहां पर एम की जगह। एम क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में एम क्या है? चलो अब ये तो बात हो गई डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब यहां पर एक पोर्शन बाकी है, रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स, वो यहां नहीं, आगे आएंगे। अब यहां पर इस चैप्टर को अगर आगे बढ़ाना है तो फिर से फिजिक्स की और भी कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। फिजिक्स की कुछ टर्म्स की हम बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले अब आता है वेव्स। देखो फिजिक्स में ये पूरा चैप्टर है, केमिस्ट्री में छोटा सा पोर्शन ही है, बट जो भी टर्म्स मैं यूज करूंगा वो हमें यहां पर पता होनी चाहिए। तो वेव्स से रिलेटेड वर्ड सभी को पता है, वेव, राइट। क्या काम आती है वेव्स, क्या करती है आपको पता है? ये वेव्स जो होती है ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट पता है क्या होता है वेव्स में? एनर्जी का तो ट्रांसफर होता है लेकिन मैटर का कोई ट्रांसफर नहीं होता है। यानी मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर विदाउट द नेट ट्रांसफर ऑफ मैटर। यानी मैटर अपनी जगह पर ही रहता है, मैटर अपनी जगह पर भी रहता है, लेकिन एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है। एग्जाम्पल जैसे मान लो यहां से एक रस्सी बंधी हुई है, एक रस्सी इस एंड पर बंधी हुई है, यहां से आप इस रस्सी को एक हम्प क्रिएट करते हो, यहां से एक हम्प क्रिएट करते हो, यानी आपने झटका दिया, एक हम्प क्रिएट होता है। हम यानी आपने इस रस्सी को एनर्जी दी है, अपनी एनर्जी इसको दी, ये हम ट्रेवल करता हुआ जाता है, ये हम ट्रेवल करता है ऐसे आगे आगे, और फाइनली यहां से टकराएगा, और टकरा के ये अपनी एनर्जी इस वॉल को ट्रांसफर कर देगा, या यहां जो भी होगा उसको अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा। यानी आपने अपनी एनर्जी इस वॉल को ट्रांसफर कर दी, लेकिन आप अभी भी अपनी जगह हो। जब हम मूव कर जाएगा तो जो रस्सी है वो अपनी जगह पर आ जाएगी, एनर्जी का क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। अर्थ से सन तक लाइट एनर्जी ट्रेवल कर रही है, यानी ये भी किसके थ्रू ट्रेवल हो रही? वेव के थ्रू। तो वेव क्या है? एनर्जी ट्रांसफर करने का एक तरीका है बिना मैटर को ट्रांसफर किए हुए। हाँ, मैटर ट्रांसफर करके भी आप एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हो। एक पत्थर आप फेंकते हो, एक पत्थर आप फेंकते हो, आपने क्या किया? पत्थर को अपनी एनर्जी दी, अपनी एनर्जी पत्थर को दी, पत्थर मूव करता हुआ कहीं जाता है, टकराता है, वहां पर भी एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन यहां पत्थर मूव कर गया, ये वेव नहीं है। पत्थर मूव का मूवमेंट हुआ, नेट ट्रांसफर हुआ है, वो वेव नहीं है। एनर्जी ट्रांसफर दोनों जगह हो रहा है, लेकिन यहां पर वेव्स के केस में हम कहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट द नेट ट्रांसफर ऑफ मैटर, राइट। नाउ अब इस जो वेव्स होती है, ये वेव्स जो होती है
देखो बहुत ज्यादा डिटेल में मैं फिर से बोल रहा हूं, याद रखना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट उतना जाएंगे जितना हमारी जरूरत है। तो ये फिजिक्स बीच बीच में इस चैप्टर में बहुत जगह यूज होगी, मैं उतना समझाऊंगा जिससे हमारा काम हो जाए। बाकी ज्यादा डिटेल में आप फिजिक्स में पढ़ोगे, क्योंकि ये सब फिजिक्स में एक एक पूरे चैप्टर है जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब ये जो वेव्स होती है ये दो तरह की होती है। देर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। सुना हुआ होगा डेफिनेटली, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। नॉर्मली मैं ये कह दूं, जो वाटर वेव्स है, पहले एग्जांपल लिख देते हैं। वाटर वेव्स, स्ट्रिंग वेव, रस्सी वाली जो वेव है, ये सब क्या है? ट्रांसवर्स है। इवन लाइट भी उसी तरह से है, लाइट एनर्जी जो सब। लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल साउंड वेव, लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल साउंड वेव है। डिफरेंस क्या है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में? पता है आप लोगों को? जो भी नए स्टूडेंट्स है वो क्लासेस देख सकते हैं, यहां से एक लेक्चर हुआ है, बट आज से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये क्लास होने के बाद पुराना लेक्चर देख लीजिए, नया चैप्टर है जिसका पुराना कोई ज्यादा कनेक्शन नहीं है। तो ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसमें हम क्या कहते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके मूवमेंट की डायरेक्शन, पार्टिकल्स ऊपर नीचे मूव करते हैं, जैसे स्ट्रिंग में पार्टिकल ऊपर नीचे मूव करते हैं, लेकिन वेव की डायरेक्शन इस तरफ होती है। यानी पार्टिकल्स और वेव की जो डायरेक्शन होती है वो 90 डिग्री पर होती है, वो 90 डिग्री पर होती है। जबकि लॉन्गिट्यूडनल, अभी बताऊंगा, लॉन्गिट्यूडनल में ऐसा नहीं होता। तो यहां पर पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो वेव जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है उसके 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है। पार्टिकल्स मूव परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन, टू द वेव प्रोपोगेशन। वेव प्रोपोगेशन मतलब वेव जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसके 90 डिग्री पर। जबकि यहां पर सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, पार्टिकल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ वेव, एज दैट ऑफ वेव। इसको थोड़ा इमेजिन करना मुश्किल है, ये आसान है। ये तो स्ट्रिंग वेव का आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे पार्टिकल्स ऊपर नीचे होते हैं, तो वो बड़ा आसान है। बट ये साउंड वेव्स, आपको पता है जब आप बोलते हो, अगर वैक्यूम हो तो आपकी आवाज सामने नहीं जाएगी। अगर वैक्यूम है तो आप जो बोल रहे हो वो सामने वाले को नहीं सुनाई देने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं, आप जब बोलते हो तो ये एयर के पार्टिकल्स आगे पीछे जाते हैं, ये नहीं, ये यहां से जाते हैं, आगे वाले पार्टिकल से टकराते हैं, फिर वो आगे वाले पार्टिकल से टकराता है। तो इस तरह से इन एयर के पार्टिकल्स का वेव की डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, आगे पीछे ये मूवमेंट का, जैसे स्प्रिंग होती ना, स्प्रिंग, समथिंग लाइक दैट। कंप्रेशन एक्सपांशन, कंप्रेशन एक्सपांशन, इस तरह से साउंड जो है वो ट्रेवल करती है, साउंड जो है वो ट्रेवल करती है। तो दैट इज साउंड वेव्स। हाँ, बट अभी हमारा मेन फोकस किस पर है? ट्रांसवर्स वेव। इसका मैं कोई डायग्राम नहीं बना रहा हूं, डायग्राम मुश्किल है बस। तो मेनली अभी हमारा फोकस किस पर है? ट्रांसवर्स वेव पर है। ठीक है, नाउ तो सर आपकी साउंड हमें क्यों सुनाई दे रही है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। इंजीनियरिंग करना तब समझ में आएगा, बिना इंजीनियरिंग किए हुए नहीं समझ में आएगा।
नाउ अब ट्रांसवर्स वेव की मैं बात करूंगा। ट्रांसवर्स वेव से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज है, वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो सब एक वेव की सब एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है वेव का, वेवलेंथ लिख लेते हैं। वेवलेंथ जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और वेवलेंथ क्या होती है, ये अगर एक ट्रांसवर्स वेव है तो वेवलेंथ जो है बेसिकली कह सकते हो दो नियरेस्ट, इन्हें बोलते हैं ट्रफ और इन्हें बोला जाता है क्रेस्ट। तो दो नियरेस्ट क्रेस्ट और ट्रफ के बीच की डिस्टेंस, राइट, दिस इज नोन एज वेन, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट और ट्रफ, इसे हम बोलते हैं वेवलेंथ। बिल्कुल सही कहा। नॉड एंटी नॉड गौतम अभी यहां नहीं आएंगे, रुक जाओ बेटा। शिवांश वो भी कुछ अलग है। तो व्हाट इज वेवलेंथ, ये आप डायग्राम से देख सकते हो। डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट और ट्रफ। अनिकेत ने बहुत कुछ लिखा, आपकी आवाज माइक्रोफोन में फोन में रिकॉर्ड होने बाइनरी फॉर्मेट में प्रोसेस होती है, फिर एंटीना और इंटरनेट की हेल्प से बाइनरी फॉर्मेट में होती, जिससे हमारी डिवाइस डिकोड करके हमें ऑडियो फॉर्मेट में देती है। अनिकेत जी धन्यवाद, वेरी गुड फॉर दिस इंफॉर्मेशन, बहुत बढ़िया। हम्म, अनिकेत जी जनता आपको देखना चाहती है, लेकिन क्या करो, चलो अभी तो नहीं देख पाएंगे, बट आपके चरण स्पर्श करना चाहती है। वेरी गुड, वैसे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हाँ आपकी नॉलेज अच्छी है। बहुत बढ़िया। अभी लॉन्गिट्यूडिनल वेवलेंथ की बात नहीं कर रहे, केवल ट्रांसवर्स की बात कर रहा हूं, उस पर फोकस करो। तो वेवलेंथ क्या होती वो समझ में आ गया। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड जिसको जनरली हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन। समझ में आ रहा है, लैंग्वेज बहुत सिंपल सी है। एम्पलीट्यूड किसे कहोगे आप, राइट नाउ कह सकते हो कि हाँ ये एम्पलीट्यूड है, क्योंकि इनका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट बदलता रहता है, कोई मीन पोजीशंस के ऊपर, फिर नीचे, कोई पास में होगा। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज एम्पलीट्यूड, दैट इज एम्पलीट्यूड। देन नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आ रहा हूं, यहां पर फ्रीक्वेंसी। यस, फ्रीक्वेंसी, यहां कंफ्यूजन होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसकी हम बात करेंगे। पहले डेफिनेशन लिखवा देता हूं। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड,
क्या है ये? इसको सिंपल सा एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं पहले। जैसे पेंडुलम जो होता ना, पेंडुलम को यहां पर है वो कोई पत्थर बांधा हुआ, ऊपर से आपने धागे से एक पत्थर बांधा हुआ है, और आप इस पेंडुलम को यूं कह दो कि खींच के छोड़ देते हो, खींच के छोड़ देते हो, तो आपको भी पता है कि ये ऑसिलेट करेगा, ये ऑसिलेट करेगा समथिंग लाइक दिस वन। तो यूं मान लीजिए कि अपनी मीन पोजीशन उसकी ये है, ये पत्थर क्या होगा, अपनी मीन पोजीशन से इधर जाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जाएगा, फिर वापस यहां आएगा, फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दूसरी तरफ जाएगा और यहां आ जाएगा। ये एक चक्कर जो वो काट रहा है, इसे हम कहते हैं, ये एक चक्कर हुआ तो एक सेकंड में ऐसे कितने ऑसिलेशंस कर रहा है, यहां से यहां और वापस ही आया, ये एक ऑसिलेशन हुआ, एक ऑसिलेशन हुआ। तो एक सेकंड में इस तरह के कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं, एसएचएम बोल सकते हो, जो भी कितने ऑसिलेशंस होंगे। लेकिन ये तो मैंने पेंडुलम से आपको समझाया, पेंडुलम इधर गया फिर नीचे आया मीन पोजीशन, फिर इधर आके फिर आया, ये एक राउंड हो गया। ऐसे कितने ऑसिलेशन, यानी इस एक राउंड को एक ऑसिलेशन बोल रहे हैं, तो ऐसे पर सेकंड वो कितने ऑसिलेशंस कर रहा है, कितने ऑसिलेशंस कर रहा है। अब इन केस ऑफ वेव्स थोड़ा इसको इमेजिन करना मुश्किल है, क्योंकि वेव्स में क्या होता है कि जैसे स्ट्रिंग के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो ऊपर नीचे जाते हैं, ऊपर नीचे जाते हैं। तो एक पार्टिकल जो है, आपको पता है ये स्ट्रिंग जो है उसमें एक पार्टिकल यहां वाला जो है, वो पहले यहां था अपनी मीन पोजीशन पे, ऊपर तक जाएगा, लेकिन ये हमेशा ऊपर नहीं रहेगा, ये वापस से नीचे आता, थोड़ा अलग दिखाने के लिए मैं ऐसे बना रहा हूं, ये वापस अपनी मीन पोजीशन पर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जाएगा और फिर यहां आएगा। यानी यहां से स्टार्ट करके यहां, फिर नीचे, फिर वापस यहां पर, ये एक राउंड जो है दैट इज वन ऑसिलेशन। पत्थर ऊपर, पार्टिकल ऊपर गया, फिर नीचे आया अपनी मीन पोजीशन पर, फिर नीचे गया, फिर वापस मीन पोजीशन। अगर आप पानी में कोई कॉर्क डाल दो, ढक्कन डाल दो ना, पानी में वेव्स जब जनरेट होती है, बहुतों को ये लगता है कि यार पानी में वेव्स जो जनरेट हो रही है, पानी दूर जा रहा, नहीं जाता, वो पानी केवल ऊपर नीचे ट्रेवल करता है, एनर्जी जरूर ट्रेवल करती है बट पानी ऊपर नीचे, तो कॉर्क है तो वो ऊपर नीचे जाता है। ऐसा नहीं, सारे तरह के मूवमेंट्स होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पानी, बट आप सोचो कि अगर एक ओशियन में पानी, अगर या नदी में आप पत्थर फेंकते जाओ पत्थर, तो ये थोड़ी सारा पानी बाहर जा रहा है, नहीं, वो पानी केवल ऊपर नीचे ऊपर नीचे आ रहा। आप पत्थर फेंकते हो पानी में, एक पॉन्ड में आप पत्थर फेंकते हो, उसमें वेव्स जनरेट होती है। यूं मान लो कोई कॉर्क अगर उस पानी में रखा हुआ है, तो वो कॉर्क ऊपर नीचे जाता है, ऊपर नीचे होता है, राइट, मूव करता है ऊपर नीचे, दैट इज फ्रीक्वेंसी, दैट इज फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, कि एक पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ, वापस मीन पर आया, फिर अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ और फिर वापस मीन पोजीशन में, इसको कहते हैं एक ऑसिलेशन पर सेकंड। ऐसे कितने ऑसिलेशंस होंगे, दैट इज फ्रीक्वेंसी। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है न्यू से, इसको न्यू बोला जाता है, एन यू, एन यू, फ्रीक्वेंसी को न्यू बोला जाता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। इनफैक्ट इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट सही में तो सेकंड इनवर्स ही है, इसकी यूनिट की अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो यूनिट इज सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स कुछ भी हो सकता है, बट मोर पॉपुलरली दिस इज नोन एज हर्ट्स। सेकंड इनवर्स और एक ही बात है, सेकंड इनवर्स को ही यूं कर दो हर्ट्स बोल दिया जाता है। 50 सेकंड इनवर्स बोलने में अजीब सा लगता है, फ्रीक्वेंसी कितनी, 50 सेकंड इनवर्स, इससे अच्छा है 50 हर्ट्स। 100 सेकंड इनवर्स यानी 100 हर्ट्स, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। अब यहां पर थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को, कुछ खास तो नहीं बट थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं। एक
हम्म। देखना यार, ये वीडियो चल क्यों नहीं रहा? जैसे एक से एक सेकंड रुको मेरे साथ। जैसे यहाँ पे भी आ रहा ना, तो यहाँ पे ये भी नहीं चल रहा। वापस ले लो। ज्यादा क्लियर नहीं है, बट दो अलग अलग तरह से स्ट्रिंग वेव्स हम जनरेट कर रहे हैं। स्ट्रिंग वेव्स जनरेट कर रहे हैं। यहां पर जो स्ट्रिंग वेव है नीचे वाली, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। एक की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, एक की फ्रीक्वेंसी कम। यहां पर जल्दी जल्दी पार्टिकल्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, यहां पर वो इतनी स्पीड से ऊपर नीचे नहीं हो रहे हैं। इनफैक्ट दिख रहा है कि इसकी वेवलेंथ ज्यादा, इसकी वेवलेंथ कम। यानी जहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वेवलेंथ कम है। जहां फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है। जहां फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा। वेवलेंथ ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम। वेवलेंथ कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा। अभी हम दोनों को रिलेट भी करेंगे, बट एक सिंपल सा छोटा सा दिखाने के लिए। क्लियरिटी थोड़ी कम है, बट आई होप अच्छा सा दिख रहा होगा आपको। टीवी स्क्रीन पर मैं भी देख रहा हूं, यहां पर काफी अच्छी तरह से दिख रहा है। इवन थोड़ा सा नोटिस करो, पास में एक ग्लास ऑफ वाटर भी है। ग्लास ऑफ वाटर भी है, उसमें भी पानी का लेवल ऊपर नीचे हो रहा है। ऊपर नीचे हो रहा है, वो फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। पानी का लेवल अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। क्योंकि वो क्या होता है, स्ट्रिंग तो दिखती है, स्ट्रिंग दिखती है, उसको रिलेट किया गया। पानी को देखना, थोड़ा बहुत दिखेगा, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। तो पानी का लेवल ऊपर नीचे हो रहा है। अब यहां पर वो एक फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे कि फ्रीक्वेंसी का मत, फ्रीक्वेंसी क्या है कि अगर एक पार्टिकल जो है, एक वेव जो है यहां से यहां, अगर ये वेव ट्रेवल कर जाती है, ये हम्प जो है आगे की तरफ मूव कर रहा है, ये हम्प आगे की तरफ मूव कर रहा है। अब इस पार्टिकल की बात करो तो जब ये हम्प यहां से यहां आ जाएगा ना, तो इस पार्टिकल का एक ऑसिलेशन पूरा हो जाएगा। एक ऑसिलेशन पूरा। यानी हम ये कहते हैं, इसको ये कहा जाता है कि लैम्डा डिस्टेंस जैसे ही आप ट्रेवल करोगे, लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करने पर कितने ऑसिलेशन हो जाएंगे? वन। वन ऑसिलेशन। यानी लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करने पर एक ऑसिलेशन। तो एक सेकंड में एक वेव कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? वी। क्या है यहां पर? स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव।
तो v डिस्टेंस ट्रेवल करने पर कितने ऑसिलेशंस होंगे? v बाय लेमडा ऑसिलेशंस। और v डिस्टेंस कितने सेकंड में ट्रेवल हो रही है? v डिस्टेंस कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। तो ये क्या हो गया? 1 सेकंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, यानी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड। और इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यू फ्रीक्वेंसी। तो न्यू इक्वल्स टू v बाय लेमडा इन केस ऑफ लाइट। इन केस ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड को हम किससे लिखते हैं? c। तो न्यू इक्वल्स टू c बाय लेमडा। राइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये एक फॉर्मूला यहां पर हमने लिख लिया, फॉर्मूला यहां पर लिख दिया। तो ये एक वेव से रिलेटेड टर्म्स। अब क्या होगा आगे? अभी जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये वर्ड्स यूज होगा। मैं बोलूंगा वेव की वेवलेंथ, वेव की फ्रीक्वेंसी, तो बहुतों को लगता है कि यार सर वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है, वेव की वेवलेंथ क्या है? ये टर्म्स थोड़ी समझ में आनी चाहिए, ये टर्म्स समझ में आनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी मतलब समझ में आना चाहिए। यूं सोच लो, फ्रीक्वेंसी मतलब एक पार्टिकल आपके हाथ में, उसके ऊपर लेके गए, वापस मीन पोजीशन पर आया, फिर नीचे आया, फिर वापस मीन पोजीशन पर आ गया, दैट इज फ्रीक्वेंसी। एक से यानी एक ऑसिलेशन हुआ, फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकंड में आप कितने ऑसिलेशंस कर रहे हो, 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशंस कर रहे हो, वो आप कह सकते हो, वो है फ्रीक्वेंसी। अब यहां पर आपको मैं बताऊं, लाइट जो होती है, लाइट भी एक तरह की वेव ही है। लाइट भी जो है वो एक तरह की वेव है, लेकिन लाइट जो है ना वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। एक तो प्रॉब्लम क्या होती है, स्ट्रिंग वेव तो फिर भी आपको दिखती है, वाटर वेव फिर भी आपको दिखती है, बट लाइट हमें दिखती नहीं है। लाइट हमें नहीं दिखती है। तो वहां पर प्रॉब्लम होती है। जैसे सनलाइट आ रही, क्या दिख रहा सर? कुछ नहीं दिख रहा। बट ऐसा नहीं है, बल्ब और इनसे कभी कभी कलरफुल लाइट्स होती, वो हमें दिखती है, कलरफुल लाइट्स दिखती है। तो ये जो वेव होती है ना, इनको थोड़ा इमेजिन करना, स्पेशली लाइट को, एनर्जी को। देखो, एनर्जी जो आ रही है ना वो भी अलग अलग वेवलेंथ वाली होती है। किसी की वेवलेंथ कम होती है, किसी की वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो विजिबल भी होती है, अल्ट्रावायलेट भी होती है, उसकी भी अभी हम बात करेंगे। तो यहां पर अब मैं आपको कह रहा हूं कि लाइट जो है वो भी एक तरह की वेव है, लेकिन वो थोड़ी अलग तरह की वेव है, जिसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैग्नेटिक वेव यानी लाइट भी आप कह सकते हो। जो सन से लाइट निकल रही है, जो ट्यूबलाइट, बल्ब, ये भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ये लाइट इज व्हाट? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये भी एनर्जी का ही ट्रांसफर हो रहा है। कोई बॉडी को आपने हीटअप कर दिया, वो एनर्जी लूज कर रही है, वो भी किसके थ्रू कर रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू। कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूं कह दो आपको दिख जाती है, उसके थ्रू देख सकते हैं, कुछ मतलब उनके थ्रू देखा जा सकता है, कुछ नहीं दिखती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये बहुत तो सर ये होती क्या है, ये बड़ा शब्द। तो मैं आपको बताऊं कि एक टाइम था जब ये लगता था, क्योंकि पहले मैं स्ट्रिंग वेव का पता था, वाटर वेव का पता था, तो ये लगता था कि जो वेव्स है वो तभी ट्रेवल करती जब कोई मीडियम हो, यानी कोई पार्टिकल होना चाहिए, किसी मीडियम में ही वो ट्रेवल करती है। लाइट वेव, स्ट्रिंग वेव्स, सॉरी, स्ट्रिंग वेव्स, वाटर वेव्स, मीडियम होना चाहिए। लेकिन लेकिन क्वेश्चन आता है कि अर्थ, सन से लेके अर्थ तक लाइट कैसे ट्रेवल करेगी, कर रही है?
तो पहले पता है एक थ्योरी थी, आपको पता है, ये कहा जाता था कि पूरे यूनिवर्स में एक इमेजिनरी ईथर है, क्योंकि सन से अर्थ तक लाइट आ रही है और ये लगता था सबको कि यार लाइट आ रही तो कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए, तो ये कहा जाता कि कोई इमेजिनरी ईथर है। बट बाद में मैक्सवेल की एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी आई 19th ऑफ सेंचुरी के आसपास, 19th ऑफ सेंचुरी में इन द मिड, और मैक्सवेल ने मैथमेटिकली ये प्रूव किया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उसके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, वो बिना मीडियम के ट्रेवल करती है। आप फर्स्ट ईयर में जब आप जाओगे इंजीनियरिंग में तो आपको एक पूरा कोर्स पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ग्रिफिथ की एक बुक आती है, वो मोस्टली सभी जगह चलती है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर है, और देखो वो पढ़ोगे तब समझ में आएगा। बट मेरे हिसाब से तो जब मैंने पढ़ा था मुझे ज्यादा कुछ देखो समझ में आया नहीं। एक तो वैसे ही फर्स्ट ईयर आईआईटी के अंदर गए थे तो हवा में ही थे, समझ रहे हो ना तुम, आईआईटी के अंदर अपने ही मस्त। अब ठीक है आईआईटी में तो आ ही गए, बस अब क्या है, मजे करो। तो वो खैर बड़ा ही, और मैक्सवेल को उसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला। तो ये मैक्सवेल की थ्योरी ऐसी नहीं है कि मैं आपको 2 5 10 मिनट में समझा दूं कि देखो मैक्सवेल ने ऐसे प्रूव किया था, ऐसा नहीं हो सकता। समझना है तो बहुत टाइम लगेगा, अपने आप में एक सब्जेक्ट है, यू मान के चल लो, अपने आप में एक सब्जेक्ट है, तो इसलिए इट्स नॉट इजी। तो उसकी डिटेल में तो हम जान ही रहे हैं, एक दो डायग्राम दिखा सकता हूं, लेकिन सही पूछो तो उन डायग्राम से भी ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ, शॉर्ट में कोई कहना कि 2 3 लाइन में थोड़ा सा समराइज कर लो, तो ये लाइनें याद रख लो, बस लाइनें याद रख लो, वो काफी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हमें दिमाग लगाना है। और लाइनें केवल इतनी सी है, समथिंग लाइन थे कि यस, ये यहां पर बेसिकली ये रेड कलर क्या शो कर रहा है, रेड कलर ये शो कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम, जहां हाइट ज्यादा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा, जहां हाइट कम वो कम। और ब्लू कलर किसकी स्ट्रेंथ को बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को। ब्लू कलर मैग्नेटिक फील्ड, रेड कलर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी 7 बजे करेंगे बेटा रियल गैस का डिस्कशन 7। तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, और हम कहते हैं कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। ऑसिलेशन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ भी ज्यादा, फिर थोड़ी कम होगी, फिर कम होगी, यानी हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, कम हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, कम हो रही है। और ये जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक को, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक को, और उससे एनर्जी का ट्रांसफर होता है, उससे एनर्जी का ट्रांसफर होता है। यस, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है बेटा, रेड और ब्लू कलर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। बट ये समझाने के लिए बेट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, ध्यान रखना। तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक को, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक को जनरेट करते करते आगे बढ़ते हैं और एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। बस इतना सा लाइनें याद रखनी है, बाकी डिटेल में नहीं समझ सकते हो, बहुत सिंपली बोल रहा हूँ। आईआईटी में जाना, खूब रिसर्च करना, वहां पर अच्छे अच्छे प्रोफेसर हैं, उनसे समझना, काफी जीनियस है वो, उनको सब आता है। हाँ, तो यहां पर अभी के लिए तो इतना ही है। 2 3 लाइनें जरूर मैं लिखवा सकता हूं, ताकि कभी बोलने को पड़े तो आप ये 2 3 लाइनें बोल दो बस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की अगर मैं बात करूं, तो लिखिए यहां पर, इट कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड oscillating electric and magnetic field which are perpendicular to
each other and to the डायरेक्शन ऑफ वेव, वेव की डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर, यानी वेव इस तरफ जा रही है, इस तरफ वेव जा रही है, वाई डायरेक्शन में वेव जा रही है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ एक्स डायरेक्शन में, नहीं एक एक्स एक वाई एक जेड। एक्स डायरेक्शन बाहर की तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड है, बोर्ड के प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस तरफ जाएगी वेव की डायरेक्शन। ठीक है, तो ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, इनकी वेवलेंथ वेरी करती है, यानी आप ये बता दो इनकी वेवलेंथ जो होती है 10 की पावर -10 मीटर, -10 मीटर से लेके यूं कह दो 10 की पावर 5 मीटर, 10 की पावर 6 मीटर, 10 की पावर 7 मीटर, अच्छी खासी रेंज में वेरी करती है। इनकी वेवलेंथ अच्छी खासी वेरी करती है, यानी फ्रीक्वेंसी, और इसी को हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया डिपेंडिंग अपॉन दी वेवलेंथ क्या है। इनको हम यूवी रेज कहते हैं, एक्स रेज कहते हैं, गामा रेज कहते हैं, रेडियो वेव्स कहते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन दी वेवलेंथ इनको कैटेगराइज कर दिया, और इसे बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम वर्ड से यहां सिंपल सा ऐसा मतलब है कि किस वेवलेंथ वाली लाइट को हम क्या बोलेंगे, किस वेवलेंथ वाली लाइट को क्या नाम दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। एक डायग्राम जो एनसीईआरटी में बना हुआ है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है ये डायग्राम, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बट एनसीईआरटी का थोड़ा डेटा लिखूं तो यह याद रखना, एनसीईआरटी में ये जो वैल्यूज यहां देख रहे हो वो 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर है। ये कंफ्यूजन रहता है, कोई 700 कोई 750 नैनोमीटर, बट जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है हम वो यूज करेंगे। 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर, राइट। क्या है ये, थोड़ा बहुत अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पर, होपफुली दिख रहा होगा, थोड़ा और बड़ा करने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर ये गामा रेज, एक्स रेज, ये आप नोटिस कर सकते हो वेवलेंथ मीटर में 10 की पावर -16 से लेके 10 की पावर 8 मीटर्स। इमेजिन कर सकते हो कितने किलोमीटर, कितने किलोमीटर। गामा रेस जो होती है उनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, वेवलेंथ कम यानी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, यानी गामा रेस की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है ये, यानी हमारे लिए खतरनाक होती है क्योंकि इनकी एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। गामा रेज, फिर उसके बाद एक्स रेज, फिर उसके बाद यूवी रेज। यूं कह सकते हो कि इस तरफ इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, यानी इधर आने पर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, इधर जाने पर मतलब वेवलेंथ बढ़ रही है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, एक्स रेज, फिर गामा रे, सॉरी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसीज गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर यूवी। और ये जो विजिबल होता ना, विबग्योर जिसे हम कहते हैं, वो बहुत छोटा होता है। कहां से लेके कहां तक, 400 नैनोमीटर से 750 विबग्योर, जिसमें रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, वायलेट की सबसे कम। विबग्योर, रेड की सबसे ज्यादा, वायलेट की सबसे कम, 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। इस रेंज की वेवलेंथ को हम कहते हैं विजिबल, क्योंकि इनके थ्रू आप देख सकते हो, इनके थ्रू आप देख सकते हो। हमें अगर किसी को देखना ऑब्जेक्ट को, तो हमारी आईज जो है वो बायो में नहीं जाएंगे, बट आईज के लिए, आईज इनके थ्रू किसी ऑब्जेक्ट को देख सकती है।
आप कभी कभी इंग्लिश मूवीज में या हम देखते हैं ना कि इंफ्रारेड गॉगल्स होते हैं, वो इंफ्रारेड गॉगल्स यूज किए जाते हैं क्योंकि इंफ्रारेड लाइट इजीली कोई अब्जॉर्ब नहीं करता, तो उसके थ्रू विजुअलाइज करना ज़्यादा आसान होता है। बट अभी उसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। गामा रेज क्या होती है, एक्स रेज क्या होती है, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है बेटा। एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। किसी की वेवलेंथ कम, किसी की वेवलेंथ ज्यादा। जिसकी वेवलेंथ कम है, उस कह सकते हो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वो हमारे लिए ज्यादा खतरनाक होती। क्या करना है आपको, ऑब्वियसली इस पूरे को ऐसे ड्रॉ करना, वैल्यूज नहीं लिखनी है आपको, बट आपको राइट नाउ क्या करना है, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं भाई। हाँ, तो यहां पर ये आप कह सकते हो यूवी, एक्स रेज, और ये गामा रेज। ये जो छोटा सा पोर्शन है विजिबल, क्योंकि इसकी रेंज कम है इसीलिए इसे छोटा शो किया, विजिबल। उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव, और फिर रेडियो वेव्स कह सकते हो यहां से यहां तक। वैल्यूज नहीं, बट हाँ इसकी वैल्यू याद रखनी है, 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर, या फिर 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। कॉस्मिक रेज कोई पूछ रहा वो क्या होती है, तो देखिए जो कॉस्मिक रेज होती है ना, उसमें बाहर से कॉस्मिक रेज आती है, उसमें गामा रेज, एक्स रेज, और छोटे छोटे पार्टिकल भी होते हैं, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स, प्रोटॉन। इसीलिए उन्हें कॉस्मिक रेज बोला जाता है। वो और ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ये गामा रेज जो होती है ना, स्किन बर्न कर देती है क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो ये बर्निंग करती है। तो इसीलिए ये कॉस्मिक रेज
गामा रेज, एक्स रेज, ये हमारे लिए काफी खतरनाक होती है। ठीक है, तो ये कुछ जस्ट आइडिया, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब यहां पर मैं कुछ और वर्ड्स भी बोलूंगा, कोई भी जो वेव होती ना, उस वेव की से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती, कोई भी अगर वेव है तो हम कहते हैं कि वेव शोज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ वेव की अगर हम बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, ये वेव्स की प्रॉपर्टीज होती है। ये वर्ड्स भी बहुत जगह यूज होंगे। अब क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस क्या होता है, राइट? चलिए रियल गेस का डिस्कशन करना, एक वीडियो दिखाता हूं आपको, फिर उसके बाद आ जाएंगे, उस पे आएंगे। एक टब में पानी भरा हुआ है, यहां से लाइट निकल रही है। देखिए ये क्या हो रहा है, ये लाइट यहां से यहां टकरा के आ गई, दिस इज रिफ्लेक्शन। इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। लेकिन ये येलो वाली लाइट जो है, पानी से बाहर निकलने के बाद इसकी डायरेक्शन बदल गई, पानी से बाहर निकलने के बाद इसकी डायरेक्शन बदल गई, इससे बोला जाता है रिफ्रैक्शन। यानी एक मीडियम से लाइट जब दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी डायरेक्शन बदल जाती है, डायरेक्शन जब बदल जाती है तो इसे बोला जाता है रिफ्रैक्शन। इसे क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्शन। जरूरी नहीं लाइट का कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो रहा है, लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। यस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, पार्शियल रिफ्लेक्शन भी होता है। तो कुछ पार्ट इसका रिफ्रैक्ट हो रहा है, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती तो उसकी डायरेक्शन जो है वो बदल जाती है, दैट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन बड़ा कॉमन सा वर्ड है, सबको समझ में आता है। बिल्कुल सही दीक्षिका, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। हाँ गौतमा बिल्कुल सही, ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ हाँ, तुम्हें ज्यादा आता है, देखो मुझे ज्यादा नहीं आती ये बातें, बस बेसिक चीजें ध्यान रखना। वो भी बताऊंगा राधे, इंटरफेरेंस क्या होता है वो भी बताऊंगा। राइट, तो यही है और इसका, इससे होता क्या है, जैसे आप ये देखते हो ना, एक और ऐसा लग रहा है कि स्टिक टूट गई, बिकॉज आपको लग रहा है कि लाइट कहीं और से आ रही, बट वो लाइट क्योंकि उसका डायरेक्शन बदल गया तो वो टूटी हुई दिख रही है आपको, ब्रेक हो गई ऐसा लग रहा है, बिकॉज वो किसी और डायरेक्शन से आती हुई दिख रही है। कोई कह रहा भाई ये तो टूट गई पेंसिल, टूट भी गई बेटा और फिर जुड़ भी गई।
ये बेसिकली इसलिए हो रहा है, जैसे यहां पर ये हो ना, ये येलो लाइट, ये आ तो यहां से रही है, ये येलो लाइट यहां से आ रही है, लेकिन अगर कोई यहां से देख रहा है तो उसे पता है कहां से लगेगी कि येलो लाइट यहां से कहीं आ रही है। येलो लाइट, क्योंकि आदत है हमें स्ट्रेट की, तो उसे लगेगा कि येलो लाइट यहां से आ रही है, इसीलिए वो अलग जगह से आती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, ये थोड़ा बहुत और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी भी इससे फिजिक्स से कोई ज्यादा होमवर्क नहीं है। फिजिक्स में ज्यादा डिटेल में आएगा तो बस जरूरत है, इसीलिए मैंने बता दिया। बस थोड़ा सा लगे कि मैं नेक्स्ट टाइम रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वर्ड बोलूं तो आपको अजीब सा नहीं लगना चाहिए। ज्यादा डिटेल में करेंगे क्या रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन का क्या करेंगे नहीं पता, लेकिन ये वर्ड्स आपको थोड़े समझ में आने चाहिए कि हाँ सर रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। एक दो वर्ड और है, वो नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, डोंट वरी, अभी नहीं, आज थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। राइट, रियल गैसेस का डिस्कशन बाकी है, तो होमवर्क और कुछ भी नहीं है। हाँ, ये जो मैंने पढ़ाया है एनसीईआरटी में भी दे रखा है, एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हो और फिजिक्स की किसी बुक से भी पढ़ सकते हो। ज्यादा डिटेल में नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं क्योंकि वो नहीं समझ में आएगा, बट फिजिक्स की बुक से थोड़ा सा पढ़िए, वेव्स क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, ये थोड़ा पढ़िए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़िए, एच सी वर्मा से ये सब थोड़ा 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 पढ़िए, थोड़ी आदत डालिए। राइट, एच सी वर्मा से आप पढ़ सकते हो ये सारी चीजें, नहीं तो एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए। मुझे नहीं पता 11th में है या 12th में है, बट है किसी एनसीईआरटी में, तो वहां से ये चीजें थोड़ी थोड़ी पढ़िए। ज्यादा समझ में नहीं आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फिजिक्स में जब पढ़ोगे तब आ जाएगा, बट अभी थोड़ी आदत हो जाएगी, वर्ड्स पता चल जाएंगे कि हाँ इस तरह की टर्मिनोलॉजी कुछ होती है। तो आपको और कोई होमवर्क नहीं है, बट ये जो भी वर्ड्स मैंने आपको बोले हैं ये फिजिक्स की बुक में से पूरे पूरे चैप्टर है, ज्यादा मैथमेटिकल नहीं, हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक का इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए, थोड़ा सा बेसिक पार्ट पढ़ लीजिए, आपको मजा आएगा, और फिर हम जब क्लास में डिस्कस करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, ओके, डिस्कशन करते हैं रियल गैसेस का। जल्दी से बोलो, रियल गैसेस में क्या डाउट है? रियल गैसेस में क्या डाउट है? जेई एडवांस का एट्थ में बेटा पहले भी बता चुका हूं, एट्थ नहीं बता रहा हूं, वैसे तुम बहुत बार पूछ चुके हो। वाई इंटरसेप्ट हमेशा क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट मतलब कोई भी रियल गैस है उसका वाई इंटरसेप्ट मतलब जेड की वैल्यू 1। जेड की वैल्यू 1 मतलब पीवीएम इक्वस टू आर टी इक्वस टू 1, मतलब पीवीएम इक्वस टू आर टी। अगर कोई पूछे वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, अगर कर्व जेड वर्सेस पी का है, जेड वर्सेस पी का, तो वाई इंटरसेप्ट यानी इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस ये हमेशा 1 होगा। और पीवीएम वर्सेस पी का कर्व है तो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस आर टी होगा। और बोलिए, फर्स्ट क्वेश्चन पहले ही बता चुका हूं, बार बार तुम्हारे O2 में पूछिए जल्दी से, O2 का क्वेश्चन नंबर 5, 7 बी 8 बी। क्वेश्चन नंबर 5 O2 का, फर्स्ट ए ऑप्शन, वी कैन कंडेंस वेपर सिंपली बाय अप्लाइंग प्रेशर बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर। ट्रू, क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो वेपर्स को कंडेंस किया जा सकता है। बॉम्बे भी ट्रू है, वही चीज वापस से लिखी गई है। केलकटा, क्रिटिकल टेम्परेचर पर लिक्विड और वेपर स्टेट में कोई डिफरेंस नहीं होता, hence the density of liquid is nearly equal to the density of vapor। बिल्कुल सही, एक जैसे होते हैं दोनों की डेंसिटी, यानी जब गैस से लिक्विड बनता है
ऑलमोस्ट सेम डेंसिटी होती है, इसीलिए डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता. However great the pressure is applied, a gas cannot be liquefied below its critical temperature. ये फॉल्स हो गया. कर सकते हैं भाई, फॉल्स हो गया. नाइन्थ O2 का थर्ड. थर्ड तो मेरे हिसाब से मैं पहले ही बता चुका हूं, या नहीं बताया? चलो थर्ड बता देता हूं. O2 का थर्ड. क्या प्रॉब्लम है बेटा? सब तो यहां दे रखा है इन्होंने. ये कर्व इस तरह से दे रखा है, यानी ये z इक्वल्स टू 1, ये एंगल थीटा दे रखा है, ये स्लोप किसके बराबर? b बाय आर टी, यानी b बाय आर टी की वैल्यू 0.005. अब क्या निकला? बॉयल्स टेम्परेचर. ऊपर क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला दे रखा है. क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है? 500 केल्विन, यानी 8a अपॉन 27 RB. तो बॉयल्स टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ये a अपॉन आर, सॉरी a अपॉन RB, तो ये 8 अपॉन 27, ये बॉयल्स टेम्परेचर हो गया. निकाल लो. यहां से a, यहां से b की वैल्यू आ जाएगी, पुट कर दो, a की वैल्यू आ जाएगी. O2 का नाइन्थ का सी एंड डी, नाइन्थ का सी एंड डी एट लो डेंसिटी. लो डेंसिटी मतलब लो प्रेशर. लो प्रेशर पर Z इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं? लो प्रेशर पर 1 माइनस ए अपॉन वी एम आर टी. और लो डेंसिटी यानी लो प्रेशर पर कौन सा क्या डोमिनेट कर रहा है? ए डोमिनेट कर रहा है, तो मोर कंप्रेसिबल. इसको कंप्रेस करना आसान होगा. हाइड्रोजन और हीलियम के लिए हमेशा ही हमें पता है रूम टेम्परेचर Z1 से ज्यादा होता है. तो कौन डोमिनेट कर रहा है? रिपल्सिव फोर्सेस, लेस कंप्रेसिबल. लेस कंप्रेसिबल, मोर कंप्रेसिबल, ये किसके रेस्पेक्ट में? उसी कंडीशन पर जो आइडियल गैस रखी हुई है उसके रेस्पेक्ट में. जेई मेंस में भी आएंगे, डोंट वरी. अभी तो जेई मेंस तो मुझे लगता है डिस्कस कर चुका हूं. सेवंथ का ए पार्ट. वाह बेटा, सेवंथ का ए पार्ट पूछ रहे हो तो छोड़ दो. स्लोप ऑफ आइसोथर्म एट क्रिटिकल पॉइंट इज मैक्सिमम. कोई मतलब नहीं है पढ़ना आने का जिनको ये डाउट है. टीसी की वैल्यू, बी ऑप्शन, लार्जर दी वैल्यू ऑफ टीसी. जिसके लिए टीसी ज्यादा होगा मतलब अट्रैक्शन ज्यादा है. अट्रैक्शन ज्यादा या यूं कह दो रिपल्शन कम, तो लिक्विफाई करना आसान होगा. आइडियल, इवन क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर, क्रिटिकल टेम्परेचर पर आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर सकें ये जरूरी नहीं है बेटा. मैंने पहले ही कहा था अबाउ क्रिटिकल टेम्परेचर रियल गैस आइडियल नहीं होती. हाँ, थोड़ा बिहेवियर बढ़ जाता है, डेविएशन कम हो जाता है, लेकिन ये नहीं कि क्रिटिकल के ऊपर आप पीवी को RT लगा सकते हो, ऐसा नहीं है. सी भी गलत है, डी भी गलत है. O2 का एट्थ मैंने क्लास में बताया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 8, अगर आपको इस T1 टेम्परेचर पर गैस को लिक्विफाई करना है तो प्रेशर P1 लगाना पड़ेगा. इससे बराबर या इससे ज्यादा, यानी 300 केल्विन पर गैस को लिक्विफाई करना है तो प्रेशर 20 एटमॉस्फेयर या इससे ज्यादा होना चाहिए. 500 केल्विन पर करना है तो प्रेशर 50 एटमॉस्फेयर या इससे ज्यादा होना चाहिए. अब देख लो. चलिए, तो आज के लिए यहीं तक. होमवर्क फिर से बोल रहा हूं, HC वर्मा से, फिजिक्स की बुक से वेव्स के बारे में थोड़ा पढ़िए. ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, इनके बारे में थोड़ा पढ़िए. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़िए. फिर उसके बाद आप हल्का सा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन
और इस तरह की कुछ और टर्म्स जो मैंने लिखी वो पढ़ के आइए ताकि थोड़ा फायदा मिलेगा। देखो पढ़ना है, ज्यादा समझ में नहीं आएगा कोई टेंशन नहीं है, वर्ड्स समझ में आ जाने चाहिए कि यार कुछ तो होता है जो हमें थोड़ा बहुत पता, 1-आधा% भी पता चल जाएगा तो भी बहुत है। तो इसलिए ज्यादा मत सोचना, थोड़ा 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 पता होना चाहिए। दैट्स इट। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।